Hope my screen is visible to you. Is it visible, students? Hey, Sanket Tiwari, is it visible? Sanket. Atim? Yes, sir, visible. Okay. Okay. Yes, sir, it's visible. Okay. So what did you learn in last lecture, students? I think we complete with loop control structure. In last lecture, we discussed about while loop and a repeat loop in R. Okay. I think I already explained you one assignment, practical assignment based on loop, how you can solve R script using loop control structures. Okay. So just go through the lab book. I think exercise number 2 is based on loop control structure. Okay, so practical exercise based on decision control structure and loop control structure. Okay. I think out of this few questions I already explained you in last lecture. Okay, up to this you learn decision control structure, which is if else and switch in our programming. We also discuss about loop control structure where you learn loop, while loop and repeat until loop. Okay. Today I am going to explain you several practical assignment based on this decision control structure and loop control structure. I think in last lecture I already explained you second question of set A, how to write R program to calculate sum of digits of a given input number. है ना? Explain किया program? Okay. So in set A 5 questions are given, set B 5 questions are there. So it is not possible for me to explain all the questions. Okay, just go through this and tell me what question should I explain to you right now. All this program you already learned in first year, है ना? First year में आपने सारे program लिखे through C language. You are supposed to write through R programming now. Okay. Now I'm going to explain you this question number 5, as this question is also available in your final practical slip. Okay. So the program is to display multiplication table of a given input number. Okay. Here, one R program you are supposed to write to accept one number from the user. Whatever the number you enter, display the multiplication table of that number. And a multiplication table you all are aware about. Na? Suppose input number is 2, then multiplication table of number 2 is 2 into 1, 2, 2 into 2, 4, and so on, up to 2 into 10, 20. Multiplication table of a number should be displayed. So the logic of for this program is, first you are supposed to accept one number from the user. Take accept the number, use while loop. Loop is required, because there are 2 to 3 instructions that you need to execute 10 times. As multiplication table consists of 10 terms. Okay, to display 10 terms, we should write one while loop where 3 to 4 instructions are required that need to be executed 10 times, repeatedly again and again. Okay, if while loop get executed once, it will display one term as output. If the same while loop execute 10 times, 10 different terms will get displayed. As a result, we'll get the output. So to write the program, like new script,
Okay. So first instruction, what will be the first instruction? पहले एक नंबर यूजर से एक्सेप्ट करना है, तो मुझे पहला इंस्ट्रक्शन क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? एक नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन टेबल डिस्प्ले करना है, वो नंबर यूजर से एक्सेप्ट करना है. What should be the first instruction here? Which function is used to accept the input from the user? Yes? Anybody? Read line. Yes. Very good. Read line function. Just a minute. So read line function is used to accept input from the user. ठीक है? So पहला इंस्ट्रक्शन मुझे यहाँ पे read line function यूज करना है, so that I can accept any one number from the user. और वो नंबर मुझे n वेरिएबल में स्टोर करना है. तो यहाँ पे डायरेक्टली आप इंस्ट्रक्शन में वेरिएबल का नाम यूज कर सकते हो. यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली n इक्वल टू और n वेरिएबल में मुझे क्या स्टोर करना है? रीड लाइन फंक्शन थ्रू जो भी इनपुट एक्सेप्ट करने वाला हो वो वैल्यू मुझे यहाँ पे n वेरिएबल में स्टोर करना है. ठीक है? सो n इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे रीड लाइन फंक्शन यूज करना पड़ेगा. रीड लाइन इनपुट फंक्शन read line. Okay, but when this script get execute, I want to display some sort of message as well. ठीक, इनपुट क्या देना है, कितने क्वांटिटी में इनपुट प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए अगर मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन अगर डिस्प्ले किया जब मैंने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, तो इट विल बी बेटर. सो मुझे एक मैसेज प्रॉम्प्ट करना है, सो आई कैन राइट प्रॉम्प्ट इक्वल टू एंटर एनी नंबर. When this input get accepted, the message will be displayed enter any one number. Enter any number और यहाँ पे double quote complete. So when this program get execute, first instruction will accept one number from the user. जो भी नंबर आप इनपुट करोगे वो कहाँ पे स्टोर होगा? n वेरिएबल में. अभी हमको क्या करना है? n नंबर का जो भी नंबर आपने इनपुट दिया है n वेरिएबल में, उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल डिस्प्ले करना है. ठीक है? तो मल्टीप्लिकेशन टेबल डिस्प्ले करने का लॉजिक क्या है? The logic while loop is required. And this while loop should get executed 10 times, not more than 10 times, because multiplication table consists of 10 terms only. ठीक है? So क्या कंडीशन लिखना पड़ेगा यहाँ पर? So here I am declaring one more, I am using one more variable, say a is equal to 1. Okay, because first term, how you can calculate first term of the multiplication table? 2 into 1. 2 into 1 is 2. So first term of the multiplication table will be 2. Second term will be 2 into 2, 4. Third term will be 2 into 3, 6. ठीक है? So how I can obtain the first term? अभी इनपुट नंबर तो पता है n वेरिएबल में. अगर n वेरिएबल को अगर a से मल्टीप्लाई किया, where the value of initial value of a is 1, और नंबर इनपुट नंबर n में अगर से 5 स्टोर किया है, तो 5 into 1 कैलकुलेट हो जाएगा. ठीक है? That will be the first term of the table. So that's why I am taking this a variable whose initial value is 1, क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करते समय नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करना है. So a is equal to 1. And this variable also used to determine how many times this while loop should get executed. If I write the condition here while a less than or equal to 10, तब तक a का वैल्यू less than 10 है, तब तक while loop execute होते रहेगा. Means it is clear that this while loop will never get execute 11th or 12th times. ठीक है? और while loop के अंदर हमको a का वैल्यू एक से इंक्रीज करना है. फर्स्ट इटरेशन के लिए a का वैल्यू 1 होगा, सेकंड इटरेशन के लिए a का वैल्यू 2 होगा, थर्ड इटरेशन के लिए a का वैल्यू 3 होगा, एंड सो ऑन. एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ a एक्सीड्स 10, व्हाइल लूप विल टर्मिनेट. ठीक है? तो अभी क्या टास्क हमको परफॉर्म करना है? रिपीटेडली परफॉर्म करना है, जो आप यहाँ पे व्हाइल लूप पे लिखना पड़ेगा. ठीक है? पहले हमको क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन का पहला टर्म कैलकुलेट करना है. ठीक है? सो हाउ वी कैन कैलकुलेट द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म आई एम गोइंग टू स्टोर इन t वेरिएबल. तो यू डायरेक्टली दैट वेरिएबल t. पहला टर्म कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? व्हाट इज द फार्मूला? पहला टर्म 2 into 1 है ना. say input number is supposed to 2 into 1, like this we will calculate the first term. तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 2 into 1 तो मैं नहीं लिख सकता. just use the variable and tell me the expression. क्योंकि t is equal to, what should I write?
करेक्ट, n इंटू ए, बिकॉज हम इनपुट नंबर कहां पर है जिसका मल्टीपल टेबल डिस्प्ले करना है, वो नंबर है n वेरिएबल में। तो पहला टर्म क्या होगा, n इंटू वन है ना, n का वैल्यू अगर 5 है सपोज, तो पहला टर्म क्या होगा 5 इंटू वन। तो यहाँ पे 1 भी नहीं लिख सकते, n इंटू क्या लिखना पड़ेगा, a लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 हमने स्टोर किया a वेरिएबल में, सो n इंटू a। So this instruction will calculate the first term, ठीक है। जैसे फर्स्ट टर्म कैलकुलेट किया है उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि हमको डिस्प्ले भी करना है मल्टीपल टेबल, सिंपली कैलकुलेट नहीं करना है। अभी तो कैलकुलेशन होगा फर्स्ट टर्म का, डिस्प्ले करने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्हिच फंक्शन इज यूज्ड, प्रिंट, तो फिर कैट फंक्शन आप यूज कर सकते हो, प्रिंट भी यूज कर सकते हो, लेकिन प्रिंट में आप एक ही ऑब्जेक्ट डिस्प्ले कर सकते हो एज आउटपुट, कैट में आप मल्टीपल नंबर डिस्प्ले कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे जो भी टर्म है मल्टीपल टेबल का, हर एक टर्म मुझे न्यू लाइन पे डिस्प्ले करना है, ठीक है। सो हियर आई एम यूजिंग cat function so that I can display multiple objects. So cat डबल कोट में स्लैश n कॉमा, और किसका वैल्यू डिस्प्ले करना है, t वेरिएबल का, क्योंकि t हमारा फर्स्ट टर्म है टेबल का, ठीक है। डिस्प्ले करने से पहले हमने क्या किया, पहले टर्म कैलकुलेट किया, उसको डिस्प्ले किया। नेक्स्ट टर्म डिस्प्ले करने के बाद जब व्हाइल लूप सेकंड टाइम एग्जीक्यूट होगा तो फॉर्मूला तो यही रहेगा सेम, लेकिन हमारा एग्जीक्यूशन क्या होना चाहिए, n का वैल्यू सपोज 5 है तो 5 इंटू 2 होना चाहिए सेकंड टाइम, जब व्हाइल लूप सेकंड टाइम एग्जीक्यूट होगा तो, सो दैट सेकंड टर्म विल गेट कैलकुलेटेड। सो सेकंड टाइम a का वैल्यू तो 2 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास a का वैल्यू क्या है, 1 ही है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि a का वैल्यू अभी 1 से इंक्रीज करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म कैलकुलेट और डिस्प्ले करने के बाद a का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई द इंस्ट्रक्शन इज a इज इक्वल टू a प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते आर प्रोग्रामिंग में, जो सी लैंग्वेज में यूज करते हैं, ठीक है। आर प्रोग्रामिंग डज नॉट सपोर्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो आपको a का वैल्यू अगर 1 से इंक्रीज करना है तो a इज इक्वल टू a प्लस 1 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स ऑल। सो दीस आर द थ्री इंस्ट्रक्शन वी नीड टू एग्जीक्यूट रिपीटेडली 10 टाइम्स, ठीक है। व्हाइल लूप अगर एक बार एग्जीक्यूट हुआ तो पहला टर्म कैलकुलेट होगा 5 इंटू 1 से 5, वो डिस्प्ले होगा और a का वैल्यू सिंपली इंक्रीज होगा, अभी डिस्प्ले तो नहीं हुआ है, a का वैल्यू इंक्रीज हुआ है। देन एंड ऑफ द व्हाइल लूप, देन व्हाइल लूप विल एग्जीक्यूट second time again second term will get calculated, 5 into 2 10, that 10 will get displayed, a का वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगा। देन व्हाइल लूप एग्जीक्यूट थर्ड टाइम a का वैल्यू होगा 3, सो 5 into 3 15 कैलकुलेट होगा, वो डिस्प्ले होगा, देन a का वैल्यू इंक्रीज होगा 1 से। तो ये चलते रहेगा 10 टाइम्स, रिपीट होते रहेगा जब तक कि a का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 है तब तक, ठीक है। तो लास्ट टर्म 5, सो n का वैल्यू अगर 5 तो 5 into 10 50 डिस्प्ले होने के बाद जब a का वैल्यू 11 हो जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा 11th इटरेशन के लिए, एंड इट विल देन टर्मिनेट दिस व्हाइल लूप, ठीक है। और व्हाइल लूप टर्मिनेट होने के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है, डायरेक्टली एंड ऑफ द प्रोग्राम विल गेट टर्मिनेट, एंड व्हिच इज आवर एक्सपेक्टेड आउटपुट। जब प्रोग्राम टर्मिनेट होगा तब तक हमारा एक्सपेक्टेड जो आउटपुट है वो डिस्प्ले हो जाएगा एज आउट, ठीक है। सो बस इतना ही स्क्रिप्ट है, सिंपल सा, ठीक है। 5 to 6 इंस्ट्रक्शंस आर देयर ओनली, ठीक है। ओके, तो ये प्रोग्राम पूरा टाइप हो चुका है, अभी इसको पहले सेव करना पड़ेगा। सेव, आई एम गोइंग टू सेव दिस प्रोग्राम ऑन डेस्कटॉप एंड द नेम ऑफ द प्रोग्राम इज टेबल। यू कैन गिव एनी नेम टू द प्रोग्राम बट द एक्सटेंशन मस्ट बी .r, table.r नाम से मैंने प्रोग्राम सेव किया, ठीक है। नाउ विल एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। एग्जीक्यूट करने के लिए क्या स्टेप फॉलो करना होता है, फाइल, एक मिनट, प्रोग्राम सेव हुआ यहाँ पे, सोर्स आर कोड, ठीक है। सोर्स आर कोड पे क्लिक करना है और आपको जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है वो सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने प्रोग्राम सिलेक्ट किया, पहले इनपुट पूछ रहा है कंप्यूटर, ठीक है, एंटर एनी वन नंबर, क्योंकि हमारे स्क्रिप्ट में पहला इंस्ट्रक्शन था रीड लाइन फंक्शन, n इज इक्वल टू रीड लाइन एंड प्रॉम्प्ट एंटर एनी वन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इनपुट देना पड़ेगा, जब तक मैं इनपुट नहीं देगा तब तक रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन जो है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि रीड लाइन फंक्शन इनपुट फंक्शन है ना। यहाँ पे इनपुट देना पड़ेगा, सपोज इनपुट मैंने दिया है 5, नाउ एज सून एज आई प्रेस एंटर, so there is one error in the program. Acha, so what is the error? Yes, identify the error in this program, mistake is there. Correct. So here, as I already told you that read line function accept
the input in the form of character. आपने अगर नंबर भी इनपुट किया है तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी कंसिडर्ड एज कैरेक्टर इनपुट. सो मैंने इनपुट दिया था 5 डिजिट 5 बट इट विल बी स्टोर्ड एज कैरेक्टर 5 इन एन वेरिएबल. ठीक है. ड्रॉबैक नहीं बोल सकते. बाय डिफॉल्ट रीड लाइन फंक्शन एक्सेप्ट द इनपुट इन कैरेक्टर फॉर्म. ठीक है. तो कैरेक्टर 5 का मल्टीप्लिकेशन टेबल डिस्प्ले नहीं कर सकते हो. कैरेक्टर 5 नहीं स्टोर होना चाहिए, नंबर 5 डिजिट 5 स्टोर होना चाहिए. सो भी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी इनपुट हमने दिया है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में. तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एज डॉट इंटीजर. So entire read line function should be enclosed between this as dot integer so that that input will be converted into. Okay, save these changes. Now again we'll execute the script. So enter any number. So मैंने input दिया number 5. Again logical mistake is there. What is the mistake now? Enter any number less than or equal to 10. कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज किया बराबर है. हाँ कहाँ पे दिए बराबर नहीं है भाई. while a less than or equal to 10 ये दिया ना यहाँ पर. इधर कहाँ पे इधर नहीं दिया ना. is equal to cat. Just a minute. As dot integer. So here's the output. I'm executing this program again. एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना है, फाइल सोर्स कोड के ऊपर क्लिक करना है और जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है उसको सिलेक्ट करना होता है. सो टेबल डॉट आर. सो जैसे मैंने प्रोग्राम को सिलेक्ट किया है यहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है. एंटर एनी नंबर. सो दिस टाइम आई एम गिविंग इनपुट एज 8 नंबर 8 एंड दिस इज अ टेबल मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ नंबर 8. ठीक है. 8 16 24 अप टू 8 10s are 80. ठीक है. So any doubt in this program, students? Any doubt? The program is there in your final practical sleep for I think 15 marks. 15 मार्क का क्वेश्चन है. ठीक है. Write down this program. शर्ट लाल शर्ट कुठे आहे. अरे जाळे. Program to display multiplication table of a input number.
सा प्रोग्राम एक्सप्लेन करना है? जस्ट गो टू द लिस्ट. ऑल दिस प्रोग्राम यू आर सपोज टू सॉल्व इन प्रैक्टिकल. ठीक है, अभी सारे प्रोग्राम तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल के लिए आओगे तो मैं आपको लिस्ट देने वाला प्रोग्राम्स क्या, वो लिस्ट सारा आपको सॉल्व करना है प्रैक्टिकली. ठीक है, सो जस्ट गो थ्रू दिस लिस्ट. टेल मी कि विच प्रोग्राम. थर्ड, सेट ए और सेट बी. सेट बी का थर्ड, accept x and y coordinate of point and find the quadrant in which the point lies. Okay, so for this program you are supposed to accept the coordinates of a point. Okay, एक point के दो coordinates होते हैं, x value and y value. Okay, after accepting the coordinates of a point, the expected output of the program should display the quadrant in which the point lies. कौन से quadrant में वो point अवेलेबल है, वो क्वाड्रेंट आपको डिस्प्ले करना है. सो 4 क्वाड्रेंट्स अवेलेबल है, क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, है ना. Okay, assume that this is the working space and okay, so ये जो पॉइंट है यहाँ पे 0 0 होता है. दिस पॉइंट, ठीक है, दिस एक्स एक्सिस, दिस वाई एक्सिस. ठीक है, सो मेजरमेंट लाइक से यहाँ पे 10, 20, यहाँ पे 30 एंड सो ऑन. ठीक है, एक्स एक्सिस पे. तो यहाँ पे क्या नोटेशन हो गई, यहाँ पे -10 इस साइड में, -20. मैं पेन में प्रॉपर यहाँ पे टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, बट आपको समझ में आ रहा है ना स्केल कैसे होता है. -30. ठीक है, वाई एक्सिस में भी यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं, 10, 20, 30 एंड सो ऑन. यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज होते हैं, -10, -20, -30 and so on. ठीक है, 4 quadrants are there. This is called as quadrant number 1. This is quadrant number 2nd. This is quadrant number 3rd, and this quadrant is called as quadrant number 4. ठीक है, तो सपोज ये जो पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेटर अगर एक्सेप्ट किया यूजर से, ये पॉइंट है, एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वैल्यू एंड वाई वैल्यू. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, पहले एक्स वैल्यू लेते हैं, तो एक सपोज -20 है ना. इस पॉइंट ये जो है, इसका एक्स वैल्यू है -20 और वाई वैल्यू क्या है, वाई वैल्यू है +30. तो सपोज मैंने अगर ऐसे इनपुट दिया -20, 30, दो वैल्यूज आपको एक्सेप्ट करना है. दैट टू वैल्यूज रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट. पहला वैल्यू रहेगा एक्स वैल्यू उस पॉइंट का, और सेकंड वैल्यू रहेगा वाई वैल्यू. ठीक है, तो अगर मैंने इस तरह से अगर इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आना चाहिए, पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. ना, इस पॉइंट का लोकेशन कहां पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में. ठीक है, अगर एज्यूम करो कि मैंने ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट इनपुट दिया है, सपोज ये पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो एक्स वैल्यू देखो 30, एक्स वैल्यू 30, और इसका वाई वैल्यू क्या है, वाई वैल्यू है 10. तो 30 और 10 अगर मैंने ऐसे इनपुट दिया है सपोज, तो आउटपुट क्या आना चाहिए प्रोग्राम का, पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, तो वो मैंने ये वाले पॉइंट का इनपुट कोऑर्डिनेट इनपुट किया है सपोज, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसका एक्स वैल्यू है -10 और वाई वैल्यू क्या है, वाई वैल्यू भी -20, दोनों भी नेगेटिव है. तो आउटपुट आना चाहिए पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है, और सपोज इफ दिस इज द पॉइंट, सो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वैल्यू 30 और वाई वैल्यू क्या है, वाई वैल्यू -20.
30 और -20 ऐसे अगर मैंने इनपुट दिया इस प्रोग्राम के लिए तो आउटपुट क्या आना चाहिए? पॉइंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है. So when the point lies in first quadrant, if x value as well as y value, if both the values are positive, means that point lies in first quadrant. जब कहां पर भी अगर आपने पॉइंट ड्रॉ किया तो इस पॉइंट के लिए x और y वैल्यू दोनों भी पॉजिटिव वैल्यू होने वाले. ठीक है. अगर इस एरिया में कौन सा भी अगर आपने पॉइंट कंसीडर अगर एज्यूम किया तो उसका x वैल्यू नेगेटिव होने वाला है और y वैल्यू पॉजिटिव होने वाला है. तो पहला वैल्यू अगर नेगेटिव है और दूसरा वैल्यू पॉजिटिव तो पॉइंट का लोकेशन कहां पर है? सेकंड क्वाड्रेंट. ये एरिया अगर आपने कंसीडर किया कौन सा भी पॉइंट इस एरिया में कौन सा भी आपने पॉइंट लिया तो दोनों भी कोऑर्डिनेट नेगेटिव होने वाले हैं. तो अगर आपने दोनों कोऑर्डिनेट्स अगर नेगेटिव दिए है तो आउटपुट क्या आना चाहिए प्रोग्राम का? पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. उसी तरह अगर x वैल्यू पॉजिटिव है और y वैल्यू नेगेटिव है तो पॉइंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. तो प्रोग्राम का फ्लो कैसे होगा? पहले आपको एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट पहले एक्सेप्ट करना है यूजर से, देन डिसाइड करना है कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाइज आपको मींस अवेलेबल है. तो आप कंपेयर कर सकते हैं वैल्यू x वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, y वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड दैट. So we'll write a new script here. न्यू स्क्रिप्ट. ठीक है. सो देखो जब आप स्क्रिप्ट लिखते हो तो पहले इनपुट के बारे में सोचो कि इनपुट क्या चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए. पहले पूरा इनपुट एक्सेप्ट कर, उसके बाद प्रोसेसिंग क्या करना है, इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग क्या करना है और प्रोसेसिंग के बाद जो भी आउटपुट जनरेट होगा वो सिंपली आउटपुट डिस्प्ले कर दो, आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा. सिर्फ आपको सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ेगा, पहले इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, है ना. डायरेक्टली प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं कर, जब तक इनपुट ही नहीं तब तक प्रोसेसिंग नहीं हो सकता. तो प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन लिख के कुछ फायदा नहीं. पहले इनपुट के बारे में सोचो. तो थिंक एंड टेल मी कि हाउ मेनी इनपुट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोग्राम. टू वैल्यूज आर रिक्वायर्ड. इक्वेशन में क्या बोला है? एक्सेप्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट. ऐसे टू वैल्यूज डायरेक्टली दिया नहीं है, लेकिन आप सोच सकते हो कि एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो दो वैल्यूज आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा. इक्वेशन में क्या दिया है? एक्सेप्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट एंड देन डिस्प्ले द क्वाड्रेंट इन व्हिच पॉइंट लाइज. ठीक है. तो एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स, दो वैल्यू आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, x और y. पहले हम x का वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे. सेम मेथड, रीड लाइन फंक्शन. x इज इक्वल टू as डॉट इंटीजर, क्योंकि हमको नंबर में इनपुट चाहिए, कैरेक्टर में नहीं चाहिए. तो रीड लाइन फंक्शन से जो भी हम इनपुट एक्सेप्ट करेंगे उसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में. तो रीड लाइन फ्रॉम इक्वल टू and the message is enter the x coordinate of a point. ठीक है. पहले रीड लाइन फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज किया, उसके बाद as डॉट इंटीजर इस मेथड का ब्रैकेट क्लोज किया. तो एक इनपुट तो एक्सेप्ट कर लिया. उसी तरह आपको क्या करना है? सेकंड वैल्यू व्हिच इज द y कोऑर्डिनेट. तो सिंपली मैंने कॉपी पेस्ट किया इंस्ट्रक्शन. सिंपली यहाँ पे मुझे यूज करना है y वेरिएबल. सो सेकंड इनपुट कहां पे शोर हो जाएगा? y वेरिएबल में. सो y इज इक्वल टू as डॉट इंटीजर रीड लाइन फ्रॉम एंटर y coordinate of a point. ठीक है. Then once input is given, then decide कि in which quadrant this point lies. decide करना है, डिसीजन लेना है. तो तीन डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर है, if else switch. By using if we can easily solve this. Tell me when the point lies in first quadrant. पहले क्वाड्रेंट में पॉइंट कब अवेलेबल होगा, उसके कंडीशंस क्या है? If both the values are positive, है ना. मैंने both are value positive. करेक्ट. ठीक है. If x value as well as y value, if both the values are positive means what? Point lies in first quadrant. तो हम अभी कैसे लिखे यहाँ पे कंडीशन कैसे लिखे कि चेक करना कि दोनों वैल्यू पॉजिटिव है या नहीं, वो चेक करना. कैसे लिखना पड़ेगा? x वैल्यू और y वैल्यू पॉजिटिव है या नहीं चेक करना है. कैसे करूंगा मैं चेक? दोनों भी पॉजिटिव होना चाहिए. Greater than 0. Yes. Greater than 0. Yes. If x greater than 0,
एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड, दूसरा भी पॉजिटिव होना चाहिए, y भी, है ना? तो लॉजिकल एंड के लिए कौन सा सिंबल है? सिंगल एम्परसेंड. तो ऑपरेटर एक्सक्यूज मी, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, है ना? तो y भी पॉजिटिव होना चाहिए. सो इफ x ग्रेटर देन 0 एंड, यहाँ पे और नहीं यूज कर रहा हूं मैं, और का मतलब क्या है? दोनों में से कौन सा भी एक ट्रू होगा तो चलेगा, लेकिन एंड में क्या होना चाहिए कि दोनों भी कंपलसरी ट्रू होना चाहिए, तभी जाके वो कंडीशन ट्रू होगा. सो इफ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, if this condition is true, what message should get displayed? Print point lies in first quadrant. ठीक है? तो जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए चेक किया, उसी तरह भी सेकंड क्वाड्रेंट के लिए भी चेक करना है, थर्ड के लिए भी करना है, और फोर्थ के लिए भी करना है. अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट अवेलेबल नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा. अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करना पड़ेगा. तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम सेकंड सेपरेट इफ यूज करेंगे यहाँ पर. इफ, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कब अवेलेबल होगा पॉइंट? x निगेटिव होना चाहिए और y पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है? सो इफ x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, अगर x निगेटिव है और नहीं, एंड y पॉजिटिव है, दोनों भी ट्रू होना चाहिए कंडीशन. सो इफ दिस इज ट्रू, व्हाट शुड गेट डिस्प्लेड? Point lies in second quadrant. एज्यूम करो कि जो मैंने इनपुट दिया है, उस इनपुट के लिए पहला भी कंडीशन फॉल्स है और दूसरा भी कंडीशन फॉल्स है, तो ये तो आपको दोनों मैसेज में से एक भी मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा. तो इसका मीनिंग क्या है कि वो जो इनपुट मैंने दिया है या तो वो थर्ड में होगा या तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा. लेट्स टेक फॉर थर्ड क्वाड्रेंट. इफ थर्ड क्वाड्रेंट में कब होगा पॉइंट? इफ x लेस देन 0 एज वेल एज y इज लेस देन 0. So if x less than 0 and y less than 0, if both are negative, the expected output is point lies in third quadrant. ठीक है? और एज्यूम करो कि जो मैंने इनपुट दिया है उस इनपुट के लिए तीनों भी कंडीशन अगर फॉल्स है, वन मोर इफ इज रिक्वायर्ड to check whether point lies in fourth quadrant or not. So fourth quadrant का क्या कंडीशन है? x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव. फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए x का वैल्यू पॉजिटिव होगा. सो इफ x ग्रेटर देन 0 एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर y लेस देन 0. सो इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, पॉइंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. तो जो मैं इनपुट सपोज मैंने दिया है उसमें से एक ही कंडीशन ट्रू होगा. ऐसा कभी नहीं होगा कि चारों कंडीशन ट्रू रहेगा. जो इनपुट आपने दिया है उस इनपुट के लिए इस चार कंडीशन में से कौन सा भी एक ही ट्रू होगा, और जो भी कंडीशन ट्रू होगा उस इफ वाला मैसेज डिस्प्ले होगा एज आउटपुट. ठीक है? दैट्स ऑल. हियर वी कंप्लीट विद द स्क्रिप्ट. ठीक है? सो लेट मी सेव दिस प्रोग्राम फर्स्ट, देन we'll try to execute this program. I'm giving name to this program as core.r. Now we'll source that program in order. ठीक है? सो जैसे प्रोग्राम रन किया, यहाँ पे इनपुट पूछ रहा है एंटर x coordinate of point. Now you tell me what coordinate you want to specify here. X value, tell me x value 20, y value -10. पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में अवेलेबल है? x वैल्यू पॉजिटिव है 20 और y वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट. एंटर प्रेस करने के बाद करेक्ट आउटपुट आ रहा है पॉइंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है? इफ यू एग्जीक्यूट इट अगेन, any other input? Suppose x value negative है 67
-67 और y वैल्यू -90, तो इस पॉइंट का लोकेशन क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट. So as soon as I press enter, expected output is given. Point lies in third quadrant. ठीक है? Any doubt in this? No, sir. Okay, write on this program. ठीक है, ट्राई टू सॉल्व रिमेनिंग प्रोग्राम्स. सारे जो प्रोग्राम्स है इफ, इफ एल्स, लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है और सारे प्रोग्राम मैंने फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है सी लैंग्वेज थ्रू, आपने सॉल्व भी किया है. ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो आप सी लैंग्वेज में आपने जो प्रोग्राम लिखा है उसका लॉजिक चेक करके आर प्रोग्रामिंग में उसको इंप्लीमेंट करके देखो. अभी एक्सरसाइज क्यों यहाँ पे इंक्लूड किया है कि यू शुड बी फैमिलियर विद द सिंटैक्स ऑफ इफ, इफ एल्स इन आर. थोड़ा माइनर चेंजेस है, जितना चेंजेस नहीं है, सिर्फ स्विच में चेंजेस है ना. बाकी सी लैंग्वेज में जो आप यूज करते हैं इफ, इफ एल्स, व्हाइल लूप, एज इट इज यू कैन यूज इन आर प्रोग्रामिंग. ठीक है, so try to solve all these programs. Actually if else ये हमको सीखना नहीं आर प्रोग्रामिंग में. ठीक है, क्योंकि बाद में हम जब डेटा एनालिसिस करेंगे है ना, तो if else यूज करना पड़ सकता है. तो आपको सिंटैक्स पता होना चाहिए. जैसे if else में क्या रिक्वायरमेंट है, if else का, if else में else हम डायरेक्टली सेकंड न्यू लाइन पे नहीं लिख सकते. जहां पे हमने if क्लोज किया वहीं पर आपको उसी लाइन पे सेम लाइन पे else लिखना होता है. तो ये आपको याद रखना है. अगर आपने ध्यान में नहीं रखा तो एरर आ सकती है, एरर इंक्रीज हो सकता है कोई प्रोग्राम. ठीक है, तो ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस प्रोग्राम्स. ठीक है, ये जो लिस्ट है सारे प्रोग्राम का मैं कल ग्रुप पे देता हूँ आपको. घर पे भी सॉल्व करो या तो फिर जब प्रैक्टिकल का ऑफलाइन प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में भी आपको सारे प्रोग्राम सॉल्व करना है. ठीक है, सो टुडे विल स्टॉप हियर. बाय स्टूडेंट्स, लीव द मीटिंग. सर प्रेजेंटी के लिए चैट बॉक्स बंद है. जस्ट मिनट.
ये हो गया अटेंडेंस, नो प्रॉब्लम, रिकॉर्ड हो चुका है अटेंडेंस आज का, तो आप सर मीटिंग लीव कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. Leave the meeting, students, leave the meeting.